Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel, then please to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. You can even join the Telegram channel. The channel name is also Learn with Hina. Just type the name Learn with Hina in the search box, and from here you can easily get the channel over there. You can have a look on the videos which I have uploaded on YouTube and even on Unacademy. I'm an educator on Unacademy. Just type my name Hina Jain over there and you can see my various courses available over there free of cost. So I have discussed the objectives of business firms till here. So in this video we are going to discuss about human objectives, national objectives and other objectives. So let's get started. Okay, now human objectives. So this we are covering objectives of business. I know I do have Hindi students. I will be taking care of both the language while teaching. Okay. Human objectives में क्या क्या होता है? Payment of actual wages, development of human resources, relation, workers' welfare, and ensure of works and services. Now let's see about it. Now, human objectives. Human objectives refers to the objective of aimed at the well-being. So what it is aiming? Well-being and fulfilling of the expectations of employees, social people, and giving proper education and training. So human objectives आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे human beings का वेलफेयर करना, उनको अच्छा अच्छा कुछ चीज़ें देना, जैसे कि आप उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, या अगर उनको जॉब पे रख सकते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो. सो पेमेंट ऑफ एक्चुअल वेजेस, अच्छा वहाँ पे कुछ और वर्ड था आई थिंक, एक मिनट, इधर पेमेंट ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल नहीं एक्चुअल था, ठीक है, चलो. पेमेंट ऑफ एक्चुअल वेजेस. सो वर्कर्स इज पेड फॉर हिज वर्क. सो हम वर्कर्स को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं. दिस वेजेस शुड बी एक्यूरेट. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आ रहा है, आप उसे पूरा काम भी करवा रहे हो और उसे बहुत कम पैसे दे रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से आपको उसे वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए. द वर्कर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट गिविंग the accurate wages to them. Thus, the businessman helps workers to work by giving proper wages. उन्हें proper wages देने चाहिए. Next, development of human resource. So, development of क्या? Human resource. The human purpose of business is to create human resource, production strategy, discovery strategy, achieving market skills, time, proper use of money and time, education, etc. are achieved the worker for the purpose of business. So, human resource का हमें properly use करना चाहिए. हम प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, या कोई चीज़ नई आपको रिसर्च करके पता लगानी हो, मार्केट स्किल्स अचीव करने हो आपको, तो मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करना हो, तो वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के हेल्प से, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के हेल्प से. रिलेशन. In business purpose, the relation of workers, owners, relation of buyer and seller, relation of businessman and people, relation of the country and a country foreign are created, and thus the human relation is developed. So उनके साथ में अच्छा relation maintain करना है. अगर आप उनके साथ में बुरे तरीके का relation रखोगे तो रिटर्न में आपको वही देंगे और आपको कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. नेक्स्ट, वर्कर्स वेलफेयर. आपको आपको वर्कर्स का बेनिफिट करना चाहिए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स द बेटर लाइफ ऑफ वर्कर्स. सो देखो, अगर बिजनेसमैन के पास में पैसे हैं तो उन्हें अपने वर्कर्स, जो भी स्टाफ उनके अंदर काम कर रही है, उनका बेटरमेंट करना चाहिए. बिजनेस गिव्स द प्रॉपर और एक्यूरेट वेजेस टू द वर्कर्स. बिजनेस गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं कहाँ कहाँ पे हम देखें तो CSR के अंदर, एंड ट्रीटमेंट. Thus, the workers' welfare get ensures. Next, last point, ensures of works and services. It is very important of giving ensuring of workers job for achieving the goals of the business organization. It is well understood at the modern age of business. So आज की डेट में ये ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे आप है ना कोई भी काम करवा रहे हो तो साथ साथ में उन्हें सर्विसेज भी देते हो. अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में कहूँ आपको
तो फिर ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके वर्कर को काम करवा रहे हो, तो साथ ही साथ उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन भी दोगे, उन्हें थोड़ा खाने-पीने के लिए कैंटीन फैसिलिटी भी दोगे। तो ये सब चीज़ें आप जब प्रोवाइड करोगे तो वर्कर आपके साथ में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होने चाहिए यहाँ पे। सो नेशनल ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा स्टेट सोवेनिटी, रेवेन्यू इंक्रीज या इंक्रीज ऑफ द नेशनल वेल्थ, और उसके बाद में हम देखेंगे अदर ऑब्जेक्टिव्स साथ ही साथ में देख लेंगे। तो उसी के साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म आज खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिमांड क्या होता है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है। फिर मैं लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करूंगी। ओके, सो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए ताकि मैं आगे कुछ स्टार्ट करूँ आपके लिए। सो नेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एवरी बिजनेसमैन must have Every business must have the objective of fulfilling the national goals by being an important part of the country. The goal of a country may be to provide employment opportunity, क्योंकि अगर आप employment उन्हें दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो उसके वजह से हम अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे और हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी। द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। सो फर्स्ट है आपका स्टेट सोवेनिटी। Trade and commerce make ensure the state's sovereignty. It is possible by the business to make a country self-sufficient by producing military instrument. आपने देखा होगा तो इंडिया के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अब बनाए जा रहे हैं। सो बाय प्रोड्यूसिंग मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अ कंट्री बिकम्स स्टेट सोवेनिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू इंक्रीज। आप आपकी कमाई भी इंक्रीज कर रहे हो। अ कंट्री अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द मोर इम्पोर्ट बिजनेस गेट इंक्रीज, द मोर रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री गेट्स। सो जितना आप इम्पोर्ट करोगे, अच्छा यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो आपके पास में ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। इम्पोर्ट में तो हमारे ही पैसे जा रहे हैं ना बाहर। सो यहाँ पे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे एक मिनट रुको, इससे नहीं लिखती हूँ मैं, हाईलाइटर से, पेन से लिखते हैं। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट कर लो, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे आना चाहिए आपका द मोर एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे द मोर एक्सपोर्ट बिजनेस गेट इंक्रीज, द मोर रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री गेट इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंक्रीज ऑफ नेशनल वेल्थ। सो यहाँ पे नेशनल वेल्थ की बात हो रही है। द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस। The businessman helps to increase the national wealth by increasing the business opportunities and even the economic activities. So national wealth भी यहाँ पे आपकी increase होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब जितना ज़्यादा उन्हें स्कोप मिलेगा आगे बढ़ने का, उतना ही ज़्यादा कंट्री के अंदर वेल्थ जमा होगी। सो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस फॉर्म के। देर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। विदाउट दिस are not the basic objectives, and these objectives are core values, growth, maintain finance, marketing, चेंज मैनेजमेंट या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सो ये और मतलब अनगिनत ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे निकल के लेके आ सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन से दैट द बिजनेस में बी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द सोसाइटी एंड थर्स डेवलप हिम। ठीक है, सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस फॉर्म के। सो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया हम क्या डिस्कस करने वाले। हो सके उतने वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप ज़रूर कर लेना। एंड हो सके तो आप इसे आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे या आपके फेसबुक के पेज पे या उसके अलावा इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे अपलोड सब तरफ कर सकते हो, ताकि और भी लोग जिन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है वो भी हमारे साथ में जुड़ सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।